Okay, we have discussed up to question number 6th. 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था बेटा? यस सर. खुशी कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे बेटा कल? Sir, we have discussed till fifth. अप टू I think so fifth. Sir, fifth. Sir, fifth. 5th क्वेश्चन तक. Okay. Now the 6th question is square root of 1 plus sin a, and in the denominator this is 1 minus sin a. If this is equal to secant a plus tangent a. This we have to prove. Yes, किसने ट्राई किया इस क्वेश्चन को? Yes, मनन. Who have tried this question? आपको होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए बोली थी. खुशी, आई नो आपने ट्राई कर लिया है. मनन, यस बोलो. हेलो सर. यस हेलो बोलो. सर, मैंने एक्सरसाइज कर दी. मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूं क्लास के बाद? नहीं, बाद में मैं अपने आप मंगवा लूंगा. पहले आपसे बात करूंगा आपके पेरेंट्स से. यस, ओनली शिवांश एंड खुशी नहीं किया है. बाकी देवेंद्र. सर हुआ नहीं. हुआ नहीं. ट्राई किया बेटा? सर कौन सा रफ में ट्राई किया था सर, पर कुछ हाँ, समझ में नहीं आया ये वाला. कोई प्रॉब्लम नहीं. आपने चाहे रफ में किया, ट्राई किया होना चाहिए. यस Yes, sir. ऐश्वर्या बेटा बोलो. Sir, I have done. ओके, कैसे किया बेटा? बोलो बेटा. सर पहले मैंने LHS को सॉल्व किया, उसके बाद RHS को. ओके, LHS को कैसे सॉल्व किया? क्या कंसेप्ट यूज किया? बोलते जाओ बेटा, स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने किया. अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो इट मींस आपका क्वेश्चन ठीक है. कॉन्फिडेंस के साथ बोलते जाओ कैसे किया. सर पहले मैंने यस. सर मैं पिक सेंड कर दूं आपको? So first of all, this is square root. Sorry, this is square root and there is nowhere any square. So we have to make the square, the identity for the square. And here we are using sine and cos, and the identity is sine square a plus cos square a. This is equal to 1. Means we have to use this identity. Now cos square a can be written as 1 minus sine square a. Means we have to make 1 minus sine square a. तो 1 minus sine square a कैसे बनेगा? 1 minus, this is a minus b, a square minus b square, so a minus b into a plus b. तो आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 minus sin a से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 minus sin a. So this will become 1 plus sin a into 1 minus sin a. और सिंपली आप क्या करो, अगर इजी करना है तो आप 1 प्लस साइन ए से कर दो, वो और भी इजी पड़ जाएगा. 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए. देखिए अगर 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आएगा.
ये कोई रटने वाली बात नहीं है कि तब आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, लेकिन स्टेप एक आधा और बढ़ जाएगा। नाउ दिस इज a plus b into a plus b means a plus b whole square, and in denominator this is a minus b into a plus b, so this is a square minus b square. So this is equal to 1 plus sine a whole square and square root, and in denominator 1 minus sine square a is cos square a. This is cos square a. Now square root, this square will be cancelled out with this square root, so we left with 1 plus sine a upon cos a. So 1 upon cos क्या होता है secant, and sin upon cos क्या होता है tangent. So left hand side is equal to right hand side. Yes, Vandana. So can they all be divided by cos A? Sorry. So can they all be divided by cos A? बेटा टाइप कर दो. Yes, शिवांश. खुशी. So last step didn't understood. Okay. Last step is, देखो सबसे पहले तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, here this is 1 plus sin a upon cos a. Now divide 1 upon cos a plus sin a upon cos a. So 1 upon cos a is secant a, and sin a upon cos a, that is tangent a. Hence left hand side is equal to right hand side. अच्छा वंदना, आप you are asking to divide by cos a. If you divide by cos a, then this will become secant a plus sin upon cos tangent a. In numerator this will be okay, but in denominator check, here this will become secant minus tangent a. देन अगेन आपको वही करना पड़ेगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सीकेंड प्लस टेंजेंट ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. वंदना, फिर आपका क्या रहेगा कि आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सीकेंड प्लस टेंजेंट ए से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एंड डिनोमिनेटर दिस विल बिकम सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1. और न्यूमिनेटर वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी ये प्रूव हो जाएगा. तो इसका कोई एक सॉल्यूशन. यस, So can I show you I've done it? कैन यू? Can I show you I've done it? यस. हाँ आपने किया है, पहले cos से डिवाइड किया, सीकेंड प्लस टेंजेंट. बेटा ये जो आप कर रहे हो ना, सीकेंड प्लस टेंजेंट से रैशनलाइज कर रहे हो, तो उसको ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल को प्लेस करके स्क्वायर रूट का साइन है वो पूरे के ऊपर आएगा. Yes sir. ठीक है, और इसके बाद आपका यस आपने एक स्टेप मिस कर दिया कि वो स्क्वायर बनेगा. पहले स्क्वायर रूट लिखो बेटा, स्क्वायर रूट का सिंबल प्लेस करो नीचे वाले स्टेप में, सीकेंड प्लस टेंजेंट थीटा एंड इन डिनोमिनेटर सीकेंड. इससे ऊपर, इसके ऊपर वाले नहीं बेटा, इसके नीचे स्टेप है जो Which one sir? सेकंड स्टेप, लास्ट सेकंड स्टेप बेटा, लास्ट सेकंड. दिस इज नॉट लास्ट सेकंड, ये दिस इज लास्ट थर्ड. इसका नेक्स्ट जो स्टेप है ये, यहां देखो बेटा, आपको ये ऐसे लिखना है, सीकेंड प्लस टेंजेंट होल स्क्वायर एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर. यहाँ पे a है तो a चेंज कर लेना, तो ये जो है ये 1 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तब जाके आप इसको लिखोगे सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा. ठीक है, बाकी आपका सही है बेटा. यस, एनी अदर डाउट?
मोहित सर कैन वी डिवाइड देम? यस बेटा, जैसे वंदना ने किया सेम बन जाएगा। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि साइन कोस में कन्वर्ट करने से सबसे इजी पड़ता है, आपको फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाकी भी जो तरीके हैं ऑल आर करेक्ट। जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उनके पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन नहीं होता, हर एक टीचर अपना अलग अलग तरीके से करवाता है। ठीक है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू साइन एंड कोस, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोट डाउन कर लो बेटा इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन किस किसने किया है, रेज योर हैंड। यस, अवनी will explain the next question. Yes, sir. This is sin theta minus 2 sin cube theta, and in denominator this is 2 cos cube theta minus cos theta equals tangent theta. Yes beta. सर LHS ले लेंगे हम पहले। First of all LHS ठीक है, फिर सर साइन ब्रैकेट 1 minus 2 sin theta yes, square, taking sin common this will become, and in denominator cos 2 cos theta minus 1, yes, इसके बाद सर फिर 10 then bracket 1 minus 2 sin square theta, 1 minus sin square theta. sin square theta, बेटा 2 है यहाँ पे। Yes sir. 2 है बेटा। Sir 1 minus 2 sin square theta. Yes. In denominator upon 2 cos theta minus, in denominator 2 this cos is theta 2, सर 10 के नीचे कुछ नहीं, 2 cos square minus 1, 2 cos square theta minus 1. Yes, next step 10 yes minus 1 plus 2 cos square theta yes upon 2 cos square theta. देखो बेटा, इसके बाद आप क्या करो, 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस विल बिकम sin square theta plus cos square theta. आप इनमें से ना किसी भी एक को टर्म में चेंज कर लो, तब इजी पड़ जाएगा बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? सब वो करके सीधा कट कर दिया तो 10 आ गया। एक बार दिखा दो बेटा, नोटबुक में दिखा दो। दिस इज नॉट विजिबल बेटा। तो मैं आपको फोटो भेज दूं? चलो बेटा, मैं बाद में चेक कर लूंगा, ठीक है इसको, या आप मैच कर लेना। यस, एनीबॉडी एल्स? यस, शिवांश। शिवांश? Yes, sir. Yes, sir. I converted 2 cos square theta into 1 minus 2 sin square theta. 2 cos square theta minus No, sir. I converted 2 cos square theta into 1 minus 2 sin square theta. यस, हम वहां से भी कर सकते हैं। तो हमने जस्ट इसको कन्वर्ट करना है साइन में, तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो दिस विल बिकम टेंजेंट थीटा इनटू 1 minus 2 sin square theta. दिस इज cos 2 cos square theta. देखो जो 2 है, cos square theta की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 minus
साइन स्क्वायर थीटा, -1 as it is. Now this is tangent theta 1 minus 2 sin square theta, and in denominator 2 minus 2 sin square theta minus 1. So 2 minus 1 will become 1, and 1 minus 2 sin square theta न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा. जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज बन जाएगी. इसके बाद ये जो स्टेप है, इसके बाद न्यूमरेटर में सेम चीज बनेगी जो डिनोमिनेटर में है. गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट? सॉल्व करो इसको अभी, इसके बाद वाला स्टेप सॉल्व करो. यस राशि, सॉरी खुशी. Sir, can we solve it using RHS tan theta? यूजिंग एन टेंजेंट थीटा. No, sir. By solving RHS tan आरएचएस theta. से बेटा बहुत लंबा पड़ेगा. यू कैन सॉल्व, बट आरएचएस से अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत लंबा जाएगा. क्योंकि आरएचएस पता है कब लिया करो, जब यहां पे नंबर ऑफ टर्म ज्यादा हो. टेक दैट साइड विच कंटेन मोर टर्म्स. जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म्स और राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म है, तो हम सिंगल टर्म को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल टर्म को इतनी टर्म्स बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. Okay, sir. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होती दिख रही है हमें स्टेप में. यहीं से हमें आइडिया लग गया कि साइन अपॉन कोस tan है. तो मतलब ये वाली दोनों चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होना कंफर्म है, तो हम इसी पे वर्क करेंगे. Okay, sir. यस मोहित. Sir, I have got tan theta bracket 1 minus 2 sin square theta upon cos square theta minus sin square theta in last step. रिपीट करना बेटा. tan थीटा Bracket 1 minus 2 sin theta, sin square theta, एंड डिनोमिनेटर cos square theta minus sin square theta. बस ठीक है बेटा. cos स्क्वायर थीटा पे फिर फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड माइनस साइन स्क्वायर विल बिकम -2 साइन स्क्वायर थीटा. तब भी सॉल्व होगा. मेरा मोटिव आपको ये क्वेश्चन रटवाने का नहीं है कि आपको इसी तरीके से रटना है. अब जैसे कौन था बेटा, नाम क्या था अभी आपका? जैसे इसका ये आंसर आया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज बन जाए. देयर इज नो पर्टिकुलर मेथड. जितना आप इसको सॉल्व करते जाओगे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. 4 मार्क्स के ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे इजी है. इस क्वेश्चन में गलती ना होने की एक ही तो रीजन है कि आपको आंसर पता है. आपको ये आंसर पता है, बस आपको वो आंसर लिखना है. Is it clear? Any doubt? Now the next question is sin a plus cosecant a into whole square plus cos a plus secant square whole square equals 7 plus tangent square a plus cotangent square a. सिंपल है. आप उसका पहले स्क्वायर ओपन करो. फर्स्ट स्टेप स्क्वायर ओपन करो. यस शिवांश. यस मनन. हेलो यस मनन. हेलो बोलो. सर, ये क्वेश्चन मेरे को आता है. करो फिर ट्राई. सर ये वो सर पहले वो जो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी होती है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी से इन दोनों को एक्सपेंड करना है. फिर सर सारी टर्म्स कट वो उसको फिर और सिंप्लीफाई करेंगे. करने दो. यस महिपाल.
यस महिपाल, क्या डाउट है बेटा? सर लास्ट स्टेप जो बोर्ड पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड से, ये वाला, सर ऊपर वाला। ये यस बेटा सर। मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन की है। देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो मैंने उसकी वैल्यू पुट की है cos स्क्वायर थीटा की 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एंड सर 2 एज इट इज है, देखो ये 2 एज इट इज है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, 2 इंटू 1 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप सर। इसके बाद तो बेटा वो सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 2 ये बन जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो टेंजेंट थीटा बच जाएगा। ये जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है बेटा। यस अवनी। यस सर। आपने रेज किया हुआ है बेटा हैंड? सर वो पहले किया हुआ था, सॉरी। ओके बेटा, साथ के साथ लोअर कर लिया करो हैंड। यस खुशी। Sir, I have solved, but I don't know it is right or not. Can you check now? अगर तो शो कर दो, उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ। Yes, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर 2 कॉसिकेंट सीकेंट। बेटा ये 1 कहां से आया है? ये जो सबसे फर्स्ट फर्स्ट 1 लिखा हुआ है आपने, अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को आपने 1 लिख दिया, ठीक है। कॉसिकेंट स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉसिकेंट, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। बेटा मैं एग्जैक्ट बाद में चेक कर दूंगा, आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन आपका राइट ही है, ठीक है, और मैच कर लेना, अभी मैं करवा रहा हूं। Okay, sir. So taking left hand side and expand the identity a plus b whole square, this will become a square plus b square plus 2ab, 2 sin a cosecant a, plus now expand this identity, this will become cos square a plus secant square a plus 2 cos a secant a. Now this sin square a, this cos square a will become 1. आपको स्टेप में कैसे लिखना है, पहले इस स्टेप को यहां पे लिखना है, sin square a प्लस cos square a, ठीक है। उसके बाद this will become 1 plus now this will be cosecant upon sin a, sin square a plus cos square a plus this cosecant square a plus 2 sin a, and cosecant is 1 upon sin a, plus this cos square is written here, now plus secant square a plus 2 cos a into secant a can be written as 1 upon cos a. Now this is cancel out and this. Now convert cosecant into tangent and cotangent.
So cosecant square A is 1 minus cotangent square or 1 plus cotangent square? Yes, Manan. Cosecant is equal to 1 minus cotangent or 1 plus cotangent? Hello, yes sir. Cosecant is equal to Cosecant 1 minus cotangent. cosecant square theta is equal to 1. Cosecant square theta minus cotangent square theta is equal to 1. So cosecant is equal to 1 plus cotangent. This will become 1 plus cosecant square theta is equal to 1 plus cotangent square theta plus 2 plus secant square is equal to 1 plus tangent square. And this is 2. Now 1 plus 1, 2 plus 2, 4, 5, 2, 7. 7 plus cotangent square A plus tangent square A. Right, left hand side is equal to right hand side. Hence proved. Yes, Devender. सर मेरे भी यही आंसर है. ठीक है बेटा. यस मनन. सर मैं ये जो लास्ट में हमने जो एंस प्रूव्ड की वैल्यू आई है ना 7 प्लस कॉट ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर पी, इसमें सर हमें कैसे पता चलेगा? कभी सर अरेंज करना पड़े असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सर हम कैसे करेंगे इसे? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा अलग चीज होती है. दिस इज ओनली अरेंजमेंट. असेंडिंग तो सर डिसेंडिंग हमने अलग ये चीज होती है. सर चाहे हम कॉट ए पहले लिखे 10 ए पहले लिखे, इस सिचुएशन में दोनों सेम है ना? हाँ, प्लस में अगर आप 3 प्लस 2 करो चाहे 2 प्लस 3 करो, छोटे होते Okay, आपने आई थिंक 5th और 6th क्लास में एसोसिएटिव पढ़ा होगा. यस सर, एसोसिएटिव. कम्युटेटिव एसोसिएटिव, तो वही चीज है ये. और अपनी वीडियो ऑन रखो. टर्न ऑन योर वीडियो. आयुष्मान, मनन, अवनी, भानु प्रताप, प्रवीण, शिवांश, वंदना, टर्न ऑन योर वीडियो. इज इट क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज cosecant A माइनस साइन ए इंटू सीकेंड ए माइनस कॉस ए. इसमें भी फर्स्ट स्टेप आप क्या करो, cosecant और secant को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो. साइन कॉस में कन्वर्ट करो. हरी अप. आयुष्मान बेटा हिंट नहीं गिवन होंगे, फाइनल एग्जाम में हिंट नहीं दिए होंगे. ये तो हिंट सिर्फ आपको एक्सरसाइज में दिए होते हैं. यस शिवांश. Done. Hello. यस शिवांश. Hello. बोलो बेटा. Sir, done. Done. ओके. देखो हिंट का मैं बताता हूं कैसे पता चलता है. आप राइट हैंड साइड को चेक करो कि 1 अपॉन टेंजेंट प्लस कोटेंजेंट. 1 इन डिनोमिनेटर में आपको टेंजेंट प्लस कोटेंजेंट बनाना अगर पड़ गया तो ये बहुत डिफिकल्ट है, कभी नहीं बन सकता. तो आप उसको क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको सॉल्व कर लो, तब ये इजी बन जाएगा. तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो हिंट दिया हुआ है ये यहां से मिलता है कि आप डिनोमिनेटर में टेंजेंट प्लस कोटेंजेंट बनाने ले बैठ गए तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा. बनेगा लेकिन सोचना बहुत पड़ेगा. सो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और साइन कॉस में सॉल्व करेंगे. Now the next question is, this is cosecant A minus sin A into secant A minus cos A. This is equal to 1 upon tangent A plus cotangent A. Tan A plus cot A. Now
1 up cosecant A is equal to 1 upon sin A. First of all, convert into sin cos. This is 1 upon cos A minus cos A. Now taking LCM, this will become 1 minus sin square A upon sin A, and this will become 1 minus cos square A upon cos A. Now 1 minus sin square A is cos square A. Similarly, 1 minus sin square is cos square A, and 1 minus cos square A is sin square A. So this will become cos square A upon sin A into sin square A upon cos A. Sin square A upon cos square A. Now this square is cancelled out with this cos, and this square with this. Now we left with cos A. This is cos A into sin A. अब इस चीज को टेंजेंट प्लस कोटेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत एफर्ट लगेंगे. सो वी विल टेक राइट हैंड साइड. We will take right hand side. So convert tangent and cotangent into sin cos. Yes, Devender. Is it clear? Yes, sir. Or feeling bored? No, sir. So now convert into sin cos. So this will become sin A upon cos A plus this will become cos A upon sin A. देखो आइडिया देखो यहां से कैसे लग रहा है. दिस इज cos A into sin A. जब इसका एलसीएम लोगे तब भी क्या बनेगा? cos A sin A. सो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मतलब नीचे ऑटोमेटिकली ये 1 बनेगा. तो जैसे ही सॉल्व करोगे दिस विल बिकम 1 अपॉन टेकिंग एलसीएम sin A into cos A. This will become sin square A plus cos square A, and you know the identity sin square A plus cos square A is 1. So this will become sin A into cos A upon 1. Hence left hand side is equal to right hand side. Is it clear? Yes, Manan. सर हम जो सर आप जो पहले की मतलब एक दिन क्लास स्किप हो जाती तो सर हम वापस वीडियो देखते सर, वो ऐप में खुल नहीं रही है वीडियो. वो बेटा ऐप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व किया जा रहा है. सर वो 2-3 दिन से खुली नहीं रही है. दिस विल बी रिजॉल्व, और मैं अपनी पुरानी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर